Let's start. Last day I am discuss about the. Can you tell me last day class? Yes, sir. 8051 microcontroller. हाँ वो तो ठीक है, मगर उसमें कौन सा जगह में पढ़ाया था? आपको लगता है मेमोरी इंटरनल रैम के बारे में सब बोल दिया था? इससे पर भी Interrupt. बोल दिया था शायद। Yes, sir. Interrupt. सर इंस्ट्रक्शन बता रहे थे। हाँ, चारों इंस्ट्रक्शंस बताया था। वेरी गुड। हम थोड़ा बहुत एक बार स्लाइड से हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या बोले हैं उसको एक बार रिकैपिंग कर लेते हैं। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो हम पिछला दिन भी बताया था। Everyone can see? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Next, this is the instruction set. I'm coming into the instruction set. So instruction, there are several instruction set will be discussed. This is the architecture which are already described. This is the architecture, and you can see there are there are 2 external interrupt and 3 internal interrupt controller, timer and counter, 128 bytes RAM and 4K on chip ROM. And this diagram you should be drawn 10 times because it's a very, very important one. Features of 8051, which is I already described. This is also architecture, but it's not required. Whatever I am first discussed, that can be sufficient for you. So ROM 4 kilobyte, RAM 128 byte. RAM 128 bytes, timer 2, IO pins 32, means 4 port, each port is 8-bit wide, so 32 pins. Serial port is a 1, and interrupt sources is 6 interrupt sources is there. But sir, you told me that 2 external interrupt and 3 internal interrupt, am I right? तो कितना होता है 3 internal and 2 external मिला के 5, बट इधर देखो 6 बोला है, तो कोई ना कोई रीजन में इसको 6 बोला है। तो किस रीजन में 6 हुआ है हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे, बट जान लो एक रीसेट बोल के एक पिन होता है, वो भी एक इंटरप्ट, उसको हम लोग पकड़ेंगे तो 6 इंटरप्ट। ओके, कौन सा पिन सर? रीसेट। I will be coming into the pin configuration when I will describe reset. Okay. Reset is just like a restart kind of things. This is 8051, 8052. If I am compare with 8051 and 8052, just see the internal memory is a 4K, internal memory is 8K. RAM is a 128 bytes, RAM is a 256, timer 2, here timer is 3. IO pins 32, IO pins 32, serial port 1 and serial port 1, and interrupt sources 6s, here interrupt sources is 8. So 80852 is a some advantages there. These are the 5.1 family member. These are the 5.1 family member. All the ICs are from 5.1. 5.1 means it are supporting all the instruction set whatever I am described yesterday and whatever described today or tomorrow. All the instruction is supported by the 5.1 family member. So these are the 5.1 family member, nothing else. These are the all are nothing but a 5.1 family member. All are 5.1 family member. These are the IC number which are available in the market. 89351 cost is near about 60 rupees. These are the pin configurations. All of you can see the pin configurations. Yes, sir. Okay. First see देखो इधर P1.0 से लेकर P1.7 ये जो पोर्ट है, this is port 1, right?
Yes, sir. जो हम P1. बोल रहे हैं उसी को देखो, जो बोल रहे हैं उसी को देखो, पूरा डायग्राम को देखने का मत कोशिश करो, तो बहुत टफ लगेगा. इज वेरी इजी. I'm just explain one by one, so you will be able to understand. So first pin 1 to pin 8 is P1.0 to P1.7. How many ports are there? 8. 8 ports. नहीं सर, 8 बिट का एक एक पोर्ट है, Yes, sir. मगर 4 कितना ports. पोर्ट है? 4 ports. 4 पोर्ट्स, P0, P1, P2, P3. तो देखो इधर P1 है, P1.0 से लेकर P1.7, राइट? इधर Yes, sir. P0 है, P0.0 से लेकर P0.7. 39 से स्टार्ट हो रहा है, P0.0 से लेकर P0.7. 39 से स्टार्ट हो रहा है एंड 32 में खत्म. P0.0 से लेकर P0.7. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. देखो P2 इज ओवर हियर, 21 से लेकर 28 तक, P2.0 से P2.7. ओके, एंड P3.0 से लेकर P3.7. दिस इज ऑल्सो P3.0 से लेकर P3.7. So these are the nothing but a port 3.0 से लेकर port 3.7. So ये है port 3, ये चारों port. Total pin is 32 related to the IO pins. 32 IO lines. So port 1, port 3, port 2, port 0. P0, P1, P2, P3. P0, P1, P2, P3. Is it clear? Yes, sir. Sir, port का काम क्या होगा? What are the functions of port? P0 का functions क्या होगा? As a input output port. P2 का functions क्या होगा? As a input output port and other functions. Port 1 का क्या functions होगा? Port 1 का functions होगा as a input output port as well as in other functions. P3.0 बोलो. सर इनपुट आउटपुट पोर्ट बोलने का मतलब सर इसमें सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब क्या सर? इनपुट आउटपुट पोर्ट मतलब क्या है हम बोल रहे हैं. And P3.0 is an input output port as well as some other functions. So पोर्ट 1 का सिर्फ अदर फंक्शंस नहीं है, पोर्ट 3 का कुछ अदर फंक्शंस है जो साइड में नाम लिखा हुआ है. पोर्ट 2 का अदर फंक्शंस है जो साइड में नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है हायर ऑर्डर एड्रेस बस 8 to 15. पोर्ट 0 का भी एक फंक्शंस है जो एड्रेस बस के हिसाब से काम करता है, 80 से लेकर 87 तक. नेक्स्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तुम कुछ घुसाना चाहते हो, कोई डेटा घुसाना चाहते हो और you want to extract from the microcontroller. So for this port you can use. से तुमने एक LCD मॉनिटरिंग तुम डिस्प्ले दिखाना चाहते हो, LCD मॉनिटरिंग, so all are nothing but an output port. So in that particular time थोड़ा नॉइज आ रहा है, जो बात नहीं कर रहा है उसको थोड़ा म्यूट कर दो. एक्चुअली जो मान के चलो एक एलसीडी लगाएंगे हम लोग है, हम लोगों को लास्ट में हम लोग दिखाएंगे. एलसीडी लगाने का टाइम में एलसीडी में जो डेटा क्या डिस्प्ले होगा, मान के चलो हमारा नाम डिस्प्ले होगा, सुदीप्त डिस्प्ले होगा, तो सुदीप्त हमको इसी पोर्ट से भेजना पड़ेगा एलसीडी के अंदर, तब जाकर एलसीडी में डिस्प्ले होगा. सिमिलरली एडीसी इंटरफेसिंग, एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल इंटरफेसिंग, माने बाहर से कोई सिग्नल आएगा सेंसर से या किसी से जो एडीसी के अंदर घुसेगा. मान के चलो तुम्हारा रूम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, रूम का टेम्परेचर मेजर करने के बाद हम बोलेंगे रूम इज हॉटेस्ट और रूम इज कोल्डेस्ट, कुछ ऐसा मैसेज देंगे. तो कैसे करेंगे, तो हमको पहले टेम्परेचर कितना है वो मेजर करना पड़ेगा. तो टेम्परेचर फर्स्ट मेजर करेंगे किधर से, टेम्परेचर विल बी मेजर्ड बाय ए सेंसर, एंड सेंसर जो डेटा है वो आ जाएगा इसी कोई पोर्ट से माइक्रो कंट्रोलर के पास. अभी माइक्रो कंट्रोलर के पास आने के बाद माइक्रो कंट्रोलर विल बी टेक द डिसीजन दैट व्हेदर दिस टेम्परेचर इज बियॉन्ड द लिमिट और विद इन द लिमिट और एग्जिट द लिमिट, देन अकॉर्डिंग टू दैट द मैसेज विल बी डिस्प्ले. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनपुट आउटपुट क्या है समझ में आया कि नहीं, बोलो सर. पोर्ट 2 में सर मैम इसमें बोलो. जो पिन नंबर है वो मतलब बॉटम टू टॉप की वजह से. थोड़ा एक बार जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा. सर पोर्ट 2 में जो है ना सर, इसमें हाँ, A8 A9 A10 जो है एड्रेस बस जो दिया गया है, ये सर मतलब बॉटम टू टॉप क्यों है सर? ये डायरेक्शन बॉटम टू टॉप मतलब देखो जो छोटा है P2.0 के साथ है, जो 15 है
वो P2.7 के साथ है, इधर में भी ऐसा ही है, P2.0 के साथ AD 0 है, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, ऐसे ऐसे करके इक्वल हुआ ना, मैं नीचे से ही ऊपर सर चल। ये टॉप टू बॉटम है सर, इसमें तो रिवर्स डायरेक्शन मतलब। सर इधर में भी देखो ना, इधर में भी P2.0 तो ऊपर से ही है ना, P2.0 किधर से है, 39 नंबर पिन से है ना, 39 नंबर पिन से P2.0 है ना। जो आर्किटेक्चर बनाया था वो डिजाइन किया था कौन सा पिन में क्या होगा, मगर P2.0 से जो है वो AD0 के साथ कनेक्टेड, P2.7 जो है वो A15 हाईएस्ट के साथ कनेक्टेड, हाईएस्ट हाईएस्ट लोएस्ट लोएस्ट। ओके, ओके सर। मतलब पोर्ट 0 का फंक्शंस है, पोर्ट 0 का फंक्शंस है विथ आयो पोर्ट छोड़ के भी, आयो पोर्ट छोड़ के भी इसका काम होता है, आयो पोर्ट छोड़ के भी इसका काम है हायर ऑर्डर एड्रेस बस, सॉरी पोर्ट 0 का फंक्शंस है एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस मल्टीप्लेक्स, एंड पोर्ट 2 का फंक्शंस है हायर ऑर्डर एड्रेस बस, पोर्ट 2 का फंक्शंस है हायर ऑर्डर एड्रेस बस। इज इट क्लियर? Yes, पोर्ट 2 sir. हायर ऑर्डर एड्रेस बस। पोर्ट 1 का ऐसा कोई फंक्शंस नहीं है, मगर पोर्ट 3 का बहुत सारा फंक्शंस है, बहुत सारा फंक्शंस है। अभी देखते हैं पोर्ट 3 का क्या क्या फंक्शंस है। पोर्ट 0 का फंक्शन, पोर्ट 1 का फंक्शन, पोर्ट 2 का फंक्शन पता चला? यस सर। बोलो बोलो, किसी का कोई क्वेरीज है तो बोलो। सर पोर्ट 2 और पोर्ट 0 का सर बता दीजिए थोड़ा सा। पोर्ट 0 इनपुट आउटपुट, देखो पोर्ट मतलब ही इनपुट आउटपुट के हिसाब से काम करेगा, वो छोड़ के भी AD0 to AD7 नाम लिखा हुआ है, मतलब एड्रेस एंड डेटा बस के हिसाब से भी काम करेगा पोर्ट 0। सिमिलरली पोर्ट 2 मतलब इनपुट आउटपुट तो कॉमन, उसके छोड़ के 8 to 15 मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर सर। तो Yes, पोर्ट sir. 2 P2.0 से लेकर P2.7 हायर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा, P2.0 से लेकर P2.7 P0.7 ए एड्रेस अपनी डेटा बस के हिसाब से काम करेगा, इनपुट आउटपुट काम भी करेगा प्लस एक एड्रेस ए काम करेगा। मतलब यू आर एक्ट एज ए स्टूडेंट as well as मान के चलो you are working in any company, so you are also act as a employee, something like that। पोर्ट के हिसाब से काम भी करेगा, एड्रेस बस डेटा बस के हिसाब से भी काम करेगा। इसीलिए देखो देखो मैंने जब लिखाया था तो पोर्ट 0 के बाद पोर्ट 2 लिखा था, क्योंकि ये दोनों एड्रेस अपनी डेटा बस के हिसाब से काम करता है, इसीलिए हम लोग उसको एक के बाद दूसरा बोलते हैं। इज इट क्लियर? सर इनपुट आउटपुट जो है दोनों सर, ये इसमें सेम पोर्ट्स जो है, जो पिन डिस्क्रिप्शन है सब में हो रहा है। तो अगर हम मान लीजिए ऐसा सब में कुछ चारों प्रोग्रामिंग पोर्ट में कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट होगा। हाँ तो सर ऐसा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसका मतलब एड्रेस बस दिया हुआ है नहीं, तो फिर वो किस में जाएगा सर, ये कैसे डिसाइड होगा? एड्रेस एंड डेटा बस जरूरत पड़ता है जब तुम्हारा कोई मेमोरी लोकेशंस के साथ इंटरफेस करेंगे, तब तुम्हारा इंटरनल बस से काम हो जाएगा, तो कोई एड्रेस बस का डेटा बस का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और आई एम डिस्क्राइब वंस अगेन। सर तुम्हारा once इंटरनल मेमोरी कितना है? 4K। 64। टोटल मेमोरी 64 है, मगर इंटरनल रोम कितना है? देखो मैंने लिखाया था, आर्किटेक्चर भी दिखाया था, इंटरनल रोम 4K था, इंटरनल रोम 4K था। दिखाए फिर से एक बार? दिखाए एक बार, दिखाता है। इंटरनल रोम कितना था? देखो इधर, रोम कितना का है? 4K सर, 4K। 4K। 4K. इंटरनल रैम 4K, राइट? इंटरनल रैम कितना है? 128 128. 128 बाइट्स, राइट?
तो इंटरनल रोम मतलब इंटरनल मेमोरी 4K। तुम्हारा प्रोग्राम मान के चलो बहुत बड़ा है, लंबा है, उसमें 4K में नहीं हो रहा है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से मेमोरी इंटरफेस कर सकते हो। कितना तक कर सकते हो, 64K टोटल मेमोरी कैपेसिटी, तो 64K तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? 64 तक तुम्हारा मेमोरी कैपेसिटी है, सिर्फ 64 तक तुम कर पाओगे, उसके बाद नहीं पॉसिबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। सिमिलरली रैम भी 128 बाइट का है। तुमको एक्सटर्नली रैम चाहिए तो तुमको बाहर से लगाना पड़ेगा। 128 के अंदर हो जाएगा तो तुम इंटरनली काम कर सकते हो। इट्स क्लियर टू यू? इज इट Yes, क्लियर? sir. तो इसीलिए मैंने बोल रहा था, जो इंटरनल मेमोरी के अंदर हो जाएगा तो एड्रेस बस का डेटा बस के कोई फंक्शंस नहीं है, मगर बाहर में जब इंटरफेसिंग करोगे एड्रेस बस डेटा बस, तब एड्रेस बस डेटा बस के हिसाब से काम करेगा। राइट? इट्स क्लियर? Yes. नेक्स्ट, इसके लिए एड्रेस अब डेटा बस मल्टीप्लेक्स के हिसाब से काम करता है, इसीलिए एक थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हम थोड़ा बाद में डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। मगर हम पहले बाकी सारा बोल देते हैं। 2 पिन बहुत इजी है, उसको बोल देते हैं ग्राउंड, connected with the ground, and VCC connected with +5 volt DC power supply. Ground connected with the ground and VCC connected with the +5 volt power DC power supply. Next, P3.0 and P3.1. These 2 pin, देखो आर्किटेक्चर में तुम देखोगे तो RxD TxD 2 पिन था, UART के साथ जुड़ा हुआ है। Yes, sir. तो RxD TxD मतलब बाहर से आएगा और बाहर में जाएगा सीरियल कम्युनिकेशंस में, वो तो पिन होना चाहिए। Yes, तो RxD serial port TxD में था. वो Sir, एक था RxD and receiving TxD over port- here. RxD is for receive data and TxD is used receive for data, transmit data. sir, transferring data. Yes. ट्रांसफरिंग Yes, डेटा। सो इन 2 पिन रहता है सीरियली डेटा, एक एक करके बीट ट्रांसमिट करने के लिए ये रहता है। फॉर यू कैन सेंड द डेटा 1 by 1, you can send the data 1 by 1, right? Is it clear to you? Is it clear to you? It's clear. Yes. Next, INT0, INT1. These two are the external interrupt. How many external interrupt? How many external interrupt? 2. So these 2 are those pin, INT0 and INT1. बाहर से external आ सकते हैं इस पिन से। That's why इसका नेम है INT0 and INT1. Next, T0 and T1. क्या फंक्शन है T0 and T1 का? टाइमर 0 टाइमर 1, मतलब एक्चुअली ऑपरेशन होता है काउंटर 0 काउंटर 1। मान के चलो जब इंटरनल क्लॉक पल्स काउंट करेगा तो अपने आप जनरेट करेगा, जब एक्सटर्नल क्लॉक पल्स काउंट करेगा तो बाहर से क्लॉक आएगा। क्लॉक मतलब ऐसा कुछ क्लॉक होगा, इधर से इधर 1, इधर से इधर 2, इधर से इधर 3, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो क्लॉक काउंट करेगा मतलब बाहर से क्लॉक आएगा माइक्रोप्रोसेसर के पास। ये आने के लिए दिस इज नथिंग बट ए T0 फॉर काउंटर 0 and T1 is for counter 1. For counter operation, this T0 and T1 is used. Next, WR bar and RD bar. It should be bar. It should not, bar is not there, but it should be bar. WR bar and RD bar. What are the functions of WR bar and RD bar? Write bar and read bar. Memory write और IO write operations के लिए ये signal low होगा। Memory write के लिए और IO write के लिए write bar low होगा, memory read और IO read के लिए read bar low होगा। Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Sir. किसी का कोई क्वेरीज है up to that? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। पोर्ट 3 में
हर एक पिन का अलग अलग फंक्शंस है। जैसे RxD एंड TxD इज यूज्ड फॉर RxD and TxD is used for receive data and transmit Yes, data. receive data and transmit data. रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए यूज्ड होगा। INT0 एंड INT1 का क्या फंक्शंस है? टू एक्सटर्नल इंटरप्ट आर Yes, कमिंग sir. इनटू द माइक्रोकंट्रोलर। दिस टू आर नथिंग बट दिस टू पिन। इधर से कोई इंटरप्ट आएगा, इधर से कोई इंटरप्ट आएगा, तो इधर में इंटरप्ट आएगा तब जाकर तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो नॉट पॉसिबल होगा। इधर में कोई इंटरप्ट आएगा, जैसे मान के चलो एक क्लॉक आया, ऐसे करके कोई क्लॉक आएगा, राइट? तो इधर क्लॉक आने के लिए इधर में हम लोग का यूज्ड होता है। इज इट क्लियर? क्लियर? INT0 Yes. INT1 Babli is clear to you? Yes, sir. नेक्स्ट T0 एंड T1 मैंने बोला था जिसी का नाम टाइमर है उसी का नाम काउंटर भी है। इधर sir, इंटरनल both का are same. इंटरनल क्लॉक पल्स काउंट करेगा तो टाइमर बोलेंगे, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स करेंगे तो काउंटर बोलेंगे। इंटरनल क्लॉक पल्स तो खुद से जनरेट होगा, मगर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स बाहर से आएगा। तो Yes, आने के sir. लिए T0 एंड T1, T0 फॉर टाइमर 0 एंड T1 फॉर टाइमर 1। एंड राइट बार मेमोरी राइट और IO राइट ऑपरेशंस होने के टाइम ये सिग्नल लो होगा। मेमोरी रीड और IO राइट होने के टाइम ये सिग्नल लो होगा, रीड बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर इंटरनल टाइमर सर जनरेट कैसे होएगा सर? एक तो क्लॉक पल्स खुद का है ना, जो माइक्रोप्रोसेसर जो 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल में ऑपरेट करता है, यस सर। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलो तुम 1 से 10 काउंट करो, देखता है, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हु इज फास्टर? यू सर। व्हाई? माय क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज हाई सो आई कैन काउंट, यू कैन नॉट। सो कितना फास्ट काउंट करेंगे वो उसके क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए बोल्ट इतना ज्यादा दौड़ाता है, जो बहुत जल्दी दौड़ता है, और हम इतना मतलब कच्छप की तरफ जाता हूँ। इज इट क्लियर? यस सर। डिपेंड करेगा क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, खुद से जनरेट करेगा क्लॉक पल्स। हमारा जो क्लॉक पल्स, हमारा जो पावर है उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट? अभी तुम बोलो सर आप धीरे धीरे नहीं काउंट कर सकते थे ना? हाँ, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, मगर हम फास्ट भी कर सकते, मतलब हमारा कैपेसिटी उतना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। देखो मैंने पिछला दिन भी बताया था, एक क्रिस्टल था। क्रिस्टल किधर था? Oscillator. हाँ, क्रिस्टल किधर था? याद है किधर था? वो ऑसिलेटर के नीचे, Yes, sir. Oscillator के नीचे नीचे लगा हुआ है. क्रिस्टल था। वो क्रिस्टल देखो दोनों पैर है जो लगा हुआ है ऑसिलेटर के साथ। ये है X1 एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2। ये है वो एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल grounded 2। है. एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2, एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2 के साथ एक क्रिस्टल लगा हुआ रहेगा। एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2 के साथ एक क्रिस्टल लगा हुआ रहेगा। एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2 के साथ एक क्रिस्टल लगा हुआ रहेगा, जिसके साथ एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड होगा। वो तो डिफरेंट है, मगर एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2 के बीच में एक क्रिस्टल लगेगा, which is used to generate the clock pulse in microcontroller. Which is used to generate the clock pulse into the microcontroller. Next, PSEN. What are the functions of PSEN? Full form? Program Store Enable. Full form? Program Store Enable. क्या function Program Store Enable का? Full form क्या है Program Store Enable का? सर कितना टाइप का मेमोरी है? $8051 का कितना टाइप का मेमोरी है? 2 टाइप सर। क्या क्या?
प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी के एक्टिव करने के लिए PSEN बार शुड बी लो। फुल फॉर्म ऑफ PSEN प्रोग्राम स्टोर एनेबल। प्रोग्राम स्टोर एनेबल। PSEN जब लो होगा तब प्रोग्राम मेमोरी एक्टिव होगा, PSEN जब हाई होगा तो डेटा मेमोरी एक्टिव होगा। मैंने बोला था एक एक एड्रेस दो दो जगह में है, 0000 प्रोग्राम मेमोरी में भी है, 0000 डेटा मेमोरी में भी है। डिपेंड करेगा PSEN के ऊपर। PSEN लो मतलब प्रोग्राम मेमोरी का 0000H, PSEN हाई मतलब 0000H डेटा मेमोरी का। इज इट क्लियर? यस सर। ALE and PROG क्या फंक्शंस है ALE and PROG के? ALE full form is address latch enable and PROG means program। एड्रेस लैच एनेबल तुम लोग जानते ही हो। एड्रेस लैच एनेबल ये जो सिग्नल है ये एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा, मतलब 80 to 87 और डेटा बस के हिसाब से काम करेगा। वो डिपेंड करेगा ALE के ऊपर। जब तक ALE सिग्नल विल बी हाई देन 80 to 87 act as a address bus, act as a address bus, rest of the time maybe act as a data bus। PROG is a very important pin, I will be described later। ये बार external access VPP also I will be described later। I will be describe PPP and PROG in the same time, but I am describe the EA bar। EA bar full form EA full form is external access। Sir, you have written a long program, it's a required 7K memory, 7K memory। Sir, you have written a long program which is required 7K memory, am I right? यस सर। Yes, sir. सर क्या कर सकते हो, तुम्हारा पास कितना मेमोरी है इंटरनल? Four इंटरनल Four. रोम कितना है? four अभी तो K, बोला 4K ना? 4K सर। आपका नंबर सब हाँ 4K। ना, और एक जन क्या बोल रहा है? और कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा 4K मेमोरी है। कितना टोटल मेमोरी चाहिए हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए? कितना बोला मैंने? 7K, 7K। तो एक्स्ट्रा कितना है? 3K। 3K। तो दोनों तरीके हैं। ये 7K तुम बाहर से लगा सकते हो, 7K तुम बाहर से लगाओ, पूरा बाहर से 7K लगा के प्रोग्राम लिखो एंड प्रोग्राम विल बी बर्न and it will be execute if EA bar connected with the ground, then ये बार ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा तो 7K तुम बाहर से लगा के वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हो। मगर मान के चलो तुम्हारे पास 4K है प्लस 3K तुम एक्सटर्नल लगाए हो, 4K इंटरनल में लिखोगे, उसके बाद 3K एक्सटर्नल में लिखोगे, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? Total Yes, sir. 7K memory required. Yes, You sir. have a 4K, so 4K internal, 3K external। समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया? तुमको चाहिए था 7K, तुम्हारे हाथ है 4K, तो तुमको और कितना लगाना पड़ेगा बाहर से? 3K। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर। सर 3K जो एक्सटर्नल मतलब मेमोरी लगाएंगे वो तो क्या मतलब? बोलो। 4K तुम्हारा एक्सटर्नल, हम इंटरनल है, तुमको 7K चाहिए था। तुम दोनों कर सकते हो, एक 7K बाहर से लगा मैं उसी के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो, और 4K इंटरनल में लगाओ और 3K एक्सटर्नल में लगाओ, तो 4 + 3 भी कर सकते हो। तो दोनों केस में डिफरेंस होगा। ये बार 4K 7K जब एक्सटर्नली तुम लगा रहे हो तब ये बार तुमको ग्राउंड करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी। जब तुम्हारा प्रोग्राम पहले इंटरनल मेमोरी में देन एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा
तब ये बार should be connected with a +5 volt. Is it clear or not? सर +5 वोल्ट तो उसमें VCC में देते हैं ना सर। VCC भी देता है, VCC के साथ ये बार कनेक्ट कर देंगे। तो तो पहले ये बार इंटरनल मेमोरी एग्जीक्यूट करेगा, देन एक्सटर्नल मेमोरी। एक्चुअली ये बार ग्राउंड मतलब मेमोरी विल बी एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस मतलब बाहर का मेमोरी एक्सेस करेगा। ये बार उल्टा, ग्राउंड का उल्टा क्या है, +5 वोल्ट। +5 वोल्ट देंगे तो प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी। इधर 4K का छोटा प्रोग्राम होने से तो इंटरनल मेमोरी में ही हो जाएगा, और बड़ा होगा 4K इंटरनल प्लस 3K एक्सटर्नल, देन आल्सो पॉसिबल ये बार कनेक्टेड विद +5 वोल्ट। सर यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रहा मेरा। ये जो ग्राउंड ऑलरेडी एक पोर्ट है और ये बार भी एक पोर्ट है, तो सर दोनों को ग्राउंड करेंगे तो मतलब तब जाकर एक्सटर्नल जो है मेमोरी वो मतलब उसमें जो प्रोग्रामिंग होगा वो एग्जीक्यूट होगा। बोलो बोलो और एक बार बोलो सर नेटवर्क हाँ, बोलो सर बोलो बोल रहे थे कि इसमें ग्राउंड ऑलरेडी एक पोर्ट है ना सर, तो ये बार जो है इसको अगर ग्राउंड करेंगे तो दोनों ग्राउंड होगा। हाँ दोनों ग्राउंड होगा तो क्या प्रॉब्लम है, उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा तो मतलब एक ही प्रोसेस है मेरे, अगर एक्सटर्नल अगर उसमें प्रोग्रामिंग किया उसको एग्जीक्यूट कराना है तो ये बार को ग्राउंड करना होगा और ये +5 वोल्ट से उसमें कनेक्ट करना होगा, तब जाके इसमें एग्जीक्यूट होगा ना सर। हाँ ग्राउंड करना होगा और 5 वोल्ट करना होगा जब तुम्हारा प्रोग्राम छोटा है, मतलब 4K के अंदर हो जाएगा तो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एक दूसरा ये बार 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करोगे जब पहले इंटरनल मेमोरी में एग्जीक्यूट करेगा, देन एक्सटर्नल मेमोरी जरूरत पड़ेगा। इन दैट पर्टिकुलर टाइम आल्सो ये बार कनेक्टेड विद +5 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस गॉट इट। एनी क्वेरीज किसी का? किसी का कोई क्वेरीज है? सर 4K से कम मेमोरी अगर यूज होगा तो ग्राउंड कर देंगे और 4K से +5 वोल्ट करेंगे, +5 वोल्ट करेंगे। ग्राउंड करना मतलब प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा एक्सटर्नल मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी कभी यूज ही नहीं होगा। ग्राउंड हम लोग इन जनरल करते हैं जब हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम करता है जिसमें सिर्फ हम लोग मेमोरी चिप बिठाएंगे, उसी के अंदर प्रोग्राम रहेगा, तो उसी टाइम में हम लोग देखते हैं जो प्रोग्राम सही है कि नहीं है। ओके सर। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो सर ये आगे सब बढ़े। प्रैक्टिकल अगर एक बार होता ना सर और क्लियर हो जाता सर। प्रैक्टिकल होगा हमारा लास्ट में दिखाना नहीं चाह रहा था तो दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल है बाबा, ऐसे करने से कैसे होगा, सारा सर्किट है। सर हाँ सर। सर वो मेरा ना नेटवर्क आज अच्छा नहीं है, सो दैट हम ना क्लास नहीं कर पा रहे हैं। यही तो बाबा सारा कुछ रहता है तुम लोगों का, हमारा क्लास में ही प्रॉब्लम है। ठीक है तो सर आज ना डाटा का थोड़ा पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बोल दो ना हमको, और क्लास लेने का जरूरत नहीं है, हम कल से नहीं लेंगे बाबा। तुम लोग भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। सर वीडियो नो सर ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग का अटेंडेंस हम दे देंगे और तुम लोग का ये नोट्स वगैरह जो है हम सारा दे देंगे, बस तुम लोग करते रहो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अरे बाबा क्या दे रहे हो सर भाई, गिर समझ जाएंगे। नहीं आएगा ना नोट से। क्या करेंगे बबू, तुम लोग तो करते नहीं, करना नहीं चाहते हो तो हम क्या करेंगे बोलो, हमारा क्या है। नो सर एक्चुअली आज ना वीडियो ही नहीं क्लियर दिख रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। दिखेगा नहीं, जब तक हम पढ़ाएंगे उतना दिन तक दिखेगा नहीं, उसके बाद दिखेगा। नो सर हमेशा दिखता है, बस आज नहीं दिख रहा है। ये सब इंटरफेसिंग हम दिखाएंगे तब तुमको पता चलेगा प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है अभी हम लोग आएंगे, ये सब सर्किट भी हम लोग दिखाएंगे। जो मेमोरी इंटरफेसिंग हम लोग जो बोलते थे, ये सारा मेमोरी इंटरफेसिंग हम लोग इधर करेंगे। कैसे मेमोरी इंटरफेसिंग होगा तो बोल दिया था, ऐसे ड्राइंग होगा, ड्राइंग अभी इधर दिखाएंगे।
देखो 31 किसके साथ जुड़ा हुआ है? सर सर हम ना अभी बैंक में है सर, पापा को लेके आए थे तो वहीं से हम क्लास कर रहे हैं सर। इसके बाद हम जा रहे हैं सर अभी, तो सर मेरा भी छूटेगा सर, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। हम क्लास क्यों करा रहे हैं भाई? नहीं सर, आपका क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा लगता है सर, इसलिए कहीं से भी कर लेते हैं। चलो 31 नंबर पिन जो है देखो हमारा VCC के साथ काउंट कनेक्टेड है, प्लस 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। देखो राइट, अभी तो 2 पिन बचा हुआ है, उसके बारे में बोलेंगे, एक VVP और एक PROG। कितना पिन बचा हुआ है? VVP एंड PROG है कि नहीं? बोलो। यस सर। तुम लोगों को कितना मोड है? हमारा कितना मोड है? सबका कितना मोड है बोलो तो? क्या सर? सबका कितना कितना मोड है? बोलो। मोड मतलब सर? जैसे हम लोग ऑपरेशन, देखो 2 ही मोड होता है हम लोगों का, एक सीखना और एक सिखाना। पहले हम लोग खुद सीख लेते हैं, उसके बाद सिखाएंगे, यही तो होता है। हाँ या ना? यस सर। मतलब अभी तुम्हारे अंदर हमें बार्न कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर बार्न कर रहा है, am I right? Is it clear or not? अभी तुम्हारे अंदर हम प्रोग्राम बार्न कर रहे हैं, इज इट क्लियर? यस सर। कुछ दिन बाद, मान के चलो 1 साल 2 साल बाद, जब तुम टीचर बन जाओगे तो ये तुम एग्जीक्यूट करोगे तब। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो एक बार प्रोग्राम बार्न होगा और एग्जीक्यूट होगा। माइक्रो कंट्रोलर के बीच में भी ऐसा स्थिति है, एक बार प्रोग्राम बार्न करेंगे उसके बाद उसका एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार उसका प्रोग्राम बार्न करेंगे मतलब उसके अंदर लिखेंगे, दूसरा वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बार्न करने का टाइम ये 2 पिन का फंक्शंस है। सिर्फ बार्न करने का टाइम, जब प्रोग्राम बार्न करेगा। VPP में हम लोग प्लस 21 वोल्ट देते हैं। हम लोग अभी जो रॉम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, EEPROM। EEPROM मींस इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रॉम, मींस इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम मींस 21 वोल्ट देने से वो डेटा सब डिलीट हो जाता है, इसलिए हम लोग इधर 21 वोल्ट देना पड़ता है VPP में। एंड PROG में हम लोग 50 मिलीसेकंड पल्स देता है, 50 मिलीसेकंड पल्स। ये जो 50 मिलीसेकंड पल्स होता है, ये 50 मिलीसेकंड पल्स देने से माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आएगा जे अभी हमारा जो मोड है अभी हमको ये मोड में हमको प्रोग्राम बार्न करना है। आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग मोड, आई एम माय प्रोग्राम इज प्रोग्रामिंग मोड। सो ये इसी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी के लिए हम लोगों को ये 2 पिन का फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VPP is connected with a plus 21 volt and PROG is connected with 50 millisecond pulse. Is it clear? Is it clear to all of you? हाँ बोलो। सर इसी कारण से माइक्रो कंट्रोलर एक बार करता है सर। सुनाई नहीं दिया, जॉय एक बार बोलो। सर इसी कारण से क्या माइक्रो कंट्रोलर एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है? ना हाँ, इसके अंदर जो भी है माइक्रो कंट्रोलर का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते हो। उसमें 0000 रहोगे तो 0000 ही सेट रहेगा, एक ही प्रोग्राम रन कर पाएगा, दोनों प्रोग्राम एक साथ रन नहीं कर पाते। यही मुश्किल है माइक्रो कंट्रोलर का, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते हो, यही मुश्किल है। चेंज क्यों नहीं कर सकते सर? किसका बोलो तो? माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। जो आर्किटेक्चर है एक्चुअली ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जिसमें प्रोग्राम काउंटर इज अ फिक्स्ड,
प्रोग्राम काउंटर जो तुम प्रोग्राम में लिखोगे उसी से प्रोग्राम रन करेगा, एक ही प्रोग्राम रन करेगा। प्रोग्राम काउंटर बार बार जैसे हम लोग डबल क्लिक करने से दूसरा प्रोग्राम रन होता था माइक्रोप्रोसेसर में, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें उतना बड़ा ओएस नहीं है ना जो माइक्रोप्रोसेसर में ओएस है। ये हो गया तुम्हारा पिन कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शंस। अभी हम लोग देखेंगे इसको एक बार इसके हिसाब से देखा जाए तो कैसे देखेंगे। देखो इसका फंक्शंस हम लोग एक बार देख लेंगे। और दिस इज द फंक्शंस ऑफ पिन। ओह सॉरी, एक पिन बोल गया, और रिसेट पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 is a reset pin. Where we pin number 9, this pin is a reset pin. Pin number 9. Reset means restart the microcontroller. Restart the microcontroller means मान के चलो माइक्रोकंट्रोलर से तुम्हारा शादी का मेनू कार्ड बनाए हो। मेनू कार्ड मतलब तुम्हारा घर में क्या क्या खाना बनेगा उस दिन, वो तुम डिस्प्ले दिखा रहे हो। मेनू कार्ड करने से बहुत खर्चा होता था, तुम खुद से बना दिया एक प्रोग्राम जो एलसीडी में डिस्प्ले हो रहा है। टुडेज मेनू, फर्स्ट butter naan, then is kulcha, then is chili chicken or something like that. So those are the menu card you are displaying. So I am entering into your house to attend your marriage and all. So मैंने बोलेंगे बाबा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हम तो बीच में घुसा, तुम क्या करोगे बोलो तो? तुम कोशिश करोगे हमको शुरू से दिखाने के लिए? यस सर। तो शुरू से दिखाने के लिए ये रीसेट करना पड़ता है। ये रीसेट में आरएसटी में एक हाई सिग्नल देने से वो रीसेट हो जाता है। और रीसेट होने से क्या होगा, जब भी रीसेट हो जाएगा तो फिर से वो प्रोग्राम शुरुआत से एग्जीक्यूट करेगा, एकदम पहला लाइन से एग्जीक्यूट करेगा। मतलब डिस्प्ले जो है वो फिर से पहला से शुरू करेगा डिस्प्ले। इज इट क्लियर? यस सर। सर आपने कहा कि हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर रीसेट जो है वो एक तरह का इंटरप्ट है सर, तो ये किसका? हाईली इंटरप्ट है, सर। इंटरप्ट ही तो है, इसीलिए तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज कर दे रहा है। प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज कर दे रहा है। प्रोग्राम काउंटर मान के चलो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, ये है मान के चलो एक प्रोग्राम। हमारा कॉपी देख पा रहे हो? यस सर। मान के चलो दिस इज माय प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 0000 से। हम अभी चला गया मान के चलो 1124 में, इधर अभी था। ठीक है, जब भी आरएसटी करोगे तुम, जब भी रीसेट के एक हाई सिग्नल दोगे, +5 वोल्ट दोगे, क्या होगा? ये प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज होके फिर से प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 0000 स्टोर हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम विल बी अगेन एग्जीक्यूट फ्रॉम दिस बिगिनिंग लाइन। ओके, प्रोग्राम विल बी अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग लाइन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सर तो क्या ये इसमें हाई प्रायोरिटी रहेगा सर आरएसटी में? ऑब्वियसली ऑलवेज हाई प्रायोरिटी, ऑलवेज हाई प्रायोरिटी। और एक एग्जांपल देता है तुम लोग को और अच्छा लगेगा। बोला भी था कंप्यूटर का हैंग होता है। हैंग मतलब समझते हो ना? यस सर। हैंग मतलब क्या होता है ना, उस कंप्यूटर ना एक इनफाइनाइट लूप में पड़ जाता है जो उसी के अंदर घूमते रहता है। कभी ऐसा उससे लूप से निकालते नहीं है, जब भी निकालते हैं फिर से उस लूप में पड़ जाता है। तो ये जो लूप है इसके इनफाइनाइट लूप में पड़ जाता है। इसी लूप से निकालने के लिए हम लोग क्या रिस्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। रिस्टार्ट एंड रीसेट बेसिकली सेम। रिस्टार्ट एंड रीसेट बेसिकली सेम। क्या फंक्शन है रिस्टार्ट का? फिर से जो ओएस है शुरुआत से एग्जीक्यूट करेगा, यही फंक्शन है। उस टाइम में कोई इंटरप्ट आए क्या ना आए, इसका पहले काम करेगा उसके बाद दूसरा का। इज इट क्लियर? यस सर। सर तो ये कौन सा इंटरप्ट होगा सर, एक्सटर्नल या इंटरनल सर? दिस इज ऑलवेज इन एक्सटर्नल इंटरप्ट, नॉट इंटरनल इंटरप्ट। ओके सर। मगर इसको हम लोग इंटरप्ट बोलने से ऐसा नहीं होगा, मगर ये भी एक इंटरप्ट ही है, मगर इसको हम लोग इंटरप्ट के अंदर नहीं पकड़ेंगे। मतलब इसको हम लोग काम करते हैं सिर्फ रिस्टार्ट करने के लिए। इससे मान के चलो तुमको कोई एक अलार्मिंग बजाना है, कुछ बजाना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर?
Yes, sir. So this is a reset का एक सर्किट भी है, हम लोग आएंगे reset का सर्किट क्या है. This is nothing but I already described XTEL1 and XTEL2 connected with a crystal. E bar oblique VVB, just see VVB connected with the plus 21 volt and E bar is connected with the external access pin. Connected रहता है VCC के साथ, but external memory जब होगा तब हम लोग connected with the ground. ये लिया oblique PROG जो मैंने बोला था 50 millisecond pulse per program and ALE का तो function तुम लोग जानते ही हो. PSEN program store enable, program memory को enable करने के लिए PSEN यूज होता है. This XTEL1 and XTEL2 connected with a crystal with a 30 picofarad, 10 to 50 pico, any capacitor you can connect. In general, we are using 33 picofarad. We are connecting a capacitor and connecting a crystal. Is it clear to all of you? Yes, Is sir. it clear to all of you? Yes, sir. Next, there is another functions. You just see this is a 33 picofarad connected with that. Next is a function is a very vital function, that is if this crystal is not available to me, हमारे पास crystal नहीं है मगर हमारे पास एक oscillator है. Oscillator मतलब वो function generator जो होता है ना ऐसा, तो उसका तो एक ही पिन होता है. clock का तो एक ही पिन होता है ऐसा, clock like that. तो वो जो एक ही पिन है उसको हमको कौन सा पिन में लगाएंगे, XTEL1 में लगाएंगे कि XTEL2 में लगाएंगे. उस टाइम में याद रखना XTEL1 में हम लोग क्लॉक लगाएंगे एंड XTEL2 को हम लोग खाली छोड़ देंगे. XTEL2 को हम लोग खाली छोड़ देंगे, नो कनेक्शन रहेगा. ये देखो एक्सटर्नल ऑसिलेटर सिग्नल XTEL1 में हम लोग कनेक्ट किया एंड XTEL2 का हम लोग नो कनेक्शन करके छोड़ दिया, मतलब खाली छोड़ दिया. ओके, दिस इज how ALE address is working. That's an example. This is reset circuit. Reset circuit. This is pin number 9. Reset circuit. Remember, whenever we are creating any circuit using microcontroller, this circuit is compulsory. This circuit is a compulsory. You should be do it. This circuit is compulsory, either this or that. This circuit will be compulsory. We are mainly use this kind of circuit, so this circuit is always compulsory. What are the function of this instruction, this circuit? Just see pin number 9 connected with 8.2 resistance with ground and connected with a 10 microfarad capacitor with plus 5 volt. इधर एक स्विच है, टैग स्विच बोलते हैं इसको, पुश द बटन स्विच. जब भी स्विच को प्रेस करेंगे क्या होगा, प्लस 5 वोल्ट देखो कैपेसिटर से थ्रू ना जाके ये सीधा इधर से जाकर पिन नंबर 9 में चला जाएगा एंड पिन नंबर 9 में जाने से माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगा. मतलब प्लस 5 वोल्ट आ जाएगा. एंड VCC का सर्किट क्या है, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर देना पड़ेगा और 8.2 के रेजिस्टेंस देना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? It's clear? Yes, sir. So next, देखो at the reset condition, all the register is 0, program counter 0, A0, हर एक 0. सिर्फ stack pointer is 0007. Why? I will be described later on. But stack pointer is 0007. Remember that. Stack pointer is value is 0007. All the value is 0 except stack pointer is 0007. Okay? Yes, sir. Can I proceed for the next? Yes, sir. Four ports, each 8-bit wide. All port are bit addressable. Bit addressable मतलब कोई भी bit को तुम access कर सकते हो. अच्छा, पोर्ट P0 के लिए हम एक चीज बोलते हैं, by default all the port are
internal pull-up resistance is available. Internal pull-up resistance is available, but for port 0 we are given an external pull-up resistance. Externally pull-up resistance. Pull-up resistance क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे. ये है एक्सटर्नल पुल-अप रेजिस्टेंस. ओनली सिर्फ पोर्ट 0 के लिए बाहर से लगाना पड़ता है. क्या किया, इधर +5 वोल्ट दिया और 10 के रेजिस्टेंस लगा के हर एक पिन के साथ जुड़ा हुआ है. आई एम कनेक्टिंग विद ईच एंड एवरी पिन. You know, I am given a +5 volt over here and I am connecting a, 10 के resistance with each pin. क्या फंक्शन है इसका पोर्ट का पुल-अप रेजिस्टेंस? फुल फॉर्म पुल-अप रेजिस्टेंस. रिमेंबर पुल-अप रेजिस्टेंस. पुल-अप रेजिस्टेंस का एग्जांपल बोले तो मान के चलो हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया. So I cannot walk alone. I cannot walk alone. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किसी का मदद लेना पड़ेगा. हमको किसी का मदद लेना पड़ेगा. तो मदद किसका लेंगे? से जॉय का मदद लिया. तो जॉय को बोला जे हमको तुम हमारा घर पहुंचा दो. तो जॉय क्या करेगा, मैं कैसे जाऊंगा? जॉय के कंधे में एक हाथ रख के धीरे धीरे जाऊंगा. Am I right? यस सर. यस सर. मान के चलो अभी जॉय हमको लेने का कोशिश नहीं करेगा तो भी हम नहीं जा पाएंगे, और हम नहीं जाना चाहता है, जॉय हमको उठा के लेकर जाना चाहता है. इज इट पॉसिबल? इतना भारी कर लेना जॉय का पॉसिबल नहीं है. सो इफ आई एम एग्री एंड जॉय एग्री देन वी कैन गो. इफ एनीवन इज नॉट एग्री देन इज नॉट पॉसिबल. एम आई राइट? यस सर. मगर जॉय हर एक टाइम में रेडी रहेगा. क्यों बोलो तो? टीचर है ना, ऑयल डालना है. सर बोलेगा हाँ सर हम सब हर एक टाइम में रेडी. आपको कोशिश कुछ करने का नहीं है, सिर्फ बोलिए. यस सर. है या ना? यस सर. इसीलिए देखो मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस देके इधर सब हर एक टाइम में एक वोल्टेज हम दे दिया, हर एक पिन में एक वोल्टेज दे दिया with the help of 10 k resistance. Whenever this pin is 5 volt, whenever this pin is 1, means 1 volt is coming through that and another volt is coming through that, then it can be controlled by any circuit. अभी तुमको एक क्वेश्चन आ सकता है मन में, पोर्ट 0 में ही सर क्यों लगाना पड़ रहा है, बाकी पोर्ट में क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है? क्योंकि बाकी पोर्ट is not used as a address oblique data bus multiplex. Only port 0 is used address oblique data bus multiplex. So एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स होने से, इंटरनल पुल-अप रेजिस्टेंस होने से ये एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस के मल्टीप्लेक्स के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाने से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरनली पुल-अप रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं. वी आर यूजिंग इंटरनली पुल-अप रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो सर. सर एक बार और बता दीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा था सर. अच्छा, हम फिर से बोल रहा हूँ. ये एक्सटर्नल पुल-अप रेजिस्टेंस क्यों लगा रहा है? देखो इधर से एक वोल्टेज आ रहा है, मतलब जॉय दे रहा है, इधर से हम दे रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर दे रहा है, 1 दे रहा है. तब जाकर उसका जो पावर होगा उसी पावर से एक सर्किट, एक एलईडी कुछ भी जला सकते हैं. पोर्ट 0 में 1 दोगे, इधर से कुछ नहीं आएगा, तब भी नहीं ऑपरेट कर सकते. तब भी कोई तुम्हारा लाइट लगाओगे मगर वो मतलब जलेगा नहीं, उसका पावर नहीं है, उसका एम्पियर नहीं है. इसीलिए तो क्यों नहीं देता है, इसको देने से क्या प्रॉब्लम होता था, ये जो एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस जो काम कर रहा है, मतलब AD0 to AD7 के हिसाब से जो काम कर रहा है वो नहीं पॉसिबल होता था. डीमल्टीप्लेक्स इज नॉट पॉसिबल इफ इज पावर इज हाई. सो दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या करना पड़ा, जो हम लोगों को इसको इंटरनली पुल-अप रेजिस्टेंस दिया, एक्स्ट्रा इंटरनली पुल-अप रेजिस्टेंस नहीं दिया, एक्सटर्नली पुल-अप रेजिस्टेंस दिया. whereas this kind of pull-up resistance for each other port is already available in the इंटरनली इसका ऐसा पुल-अप रेजिस्टेंस है, मगर सिर्फ पोर्ट 0 में हमको बाहर से लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एड्रेस और डेटा बस के मल्टीप्लेक्स के हिसाब से जो काम कराएंगे वो ये छोड़ के काम नहीं हो पॉसिबल होगा. इज इट क्लियर? यस सर. P1 and P2, these two another 2 port, हायर ऑर्डर बस के हिसाब से भी काम करता है, वो भी लिखा है. And P3 is a different function. I already described what are the functions.
program counter and data pointer 16-bit register. This is PSW register. PSW register. Full form program status word. Full form program status word. A has CY is nothing but a carry flag. AY auxiliary carry flag. CY and carry flag and auxiliary carry flag same as 8085. 80 में जो पढ़ाया वही है. Carry flag वही है, auxiliary carry flag. Definition is same. Carry flag is nothing but a after arithmetical and logical operation, if carry or borrow is generated, then carry flag will be set. Then carry flag will be set. After carry or borrow is generated in any arithmetical and logical operation, then carry flag will be set. Is it clear to all of you? Yes, sir. Auxiliary, if carry generated in D3 bit, that will be passed into the D4 bit, or carry generated in lower nibble, that will be passed into the higher nibble. Then auxiliary carry flag will be set. Is it clear? Yes, sir. Next, F0. F0 is nothing but a F0 is a general purpose flag bit. F0 is a general purpose flag bit. It can be used. It can be used for to store any data. Register में हम लोग क्या store करते हैं? 8-bit data. 8-bit register में, am I right? 8-bit register में 8-bit data store कर सकते हैं. जैसे F0 हो गया आपका 1-bit register. इसमें कोई भी 1-bit data आप store कर सकते हो. चाहे किधर से copy करके लाओ, चाहे इधर से कोई जगह में भेज सकते हो. F0 is a called general purpose flag bit, which is used to store any particular bit, either 0 or 1 you can store. Okay. RS0, RS1 हम नहीं बोल रहे हैं, वो भी आगे पहले बोल रहे हैं. वो भी मतलब overflow flag. 8086 में जो बोला है same, but 8086 में बोला था जे 16-bit operation, इधर 16-bit operations नहीं है, इधर 8-bit operations. Overflow flag is set, if the result greater than the 7-bit in 8-bit operation. Overflow flag will be set if result greater than the 7-bit in 8-bit operations, then overflow flag will be set. Next, P for parity flag. P for parity flag. Is it clear? I'm repeat once again. OB is overflow flag. P is a P for parity flag. Clear to you or not? P is a parity flag. Parity flag का क्या functions है? Reverse of 8085. Reverse of 8085. 85 में जो parity flag पढ़ाया था उसका ठीक reverse. देखो इधर parity flag का क्या functions है? 85 में जो पढ़ाया था उसका just reverse. Parity flag is set to 1 when the number of 1 in the A register is odd. 85 में पढ़ाया था even, इधर is odd. Odd होने से parity flag इधर set होगा. Is it clear? Yes, sir. Here register RS0 RS1 is a very important one. If 00 bank 0 is selected, मैं पिछला दिन बताया था 4 bank 0 bank 1 bank 2 bank 3 याद है ना? Yes, sir. 00 होगा तो bank 0, 01 होगा तो bank 1, 10 होगा तो bank 2 and 11 होगा तो bank 3. Is it clear to all of you? हाँ? 00 होने से बैंक 0, 01 होने से बैंक 1, 10 होने से बैंक 2 and 11 होने से बैंक 3. Is it clear to all of you? Yes, sir. So A है total functions. I will not be given more data today. I will be given again tomorrow. If any queries, if you have, I can discuss. And now we are complete up to pin configurations, and yeah, next you once study once again and you see my video so that you are able to understand. Is it clear? Is it clear to all? Yes, sir. समझ में आ रहा है सर. किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो.
सर हेलो हाँ बोलो। सर, मैंने इंटरनेट पे भी एक बार सर्च किया था, तो ये 40 पिंस की जगह 28 पिंस भी दिखा रहे थे सर माइक्रो कंट्रोलर में। 28 का पिन का भी माइक्रो कंट्रोलर होता है, मगर 8051 नहीं है, दूसरा माइक्रो कंट्रोलर। ओह, माइक्रो कंट्रोलर बहुत टाइप का होता है, दूसरा होगा, दूसरा तो है ही। Is it clear? हाँ सर। Preeti Roy, is it clear to you? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस भी नहीं करते हो, कुछ समझते हो कि नहीं वो भी पता नहीं है। सर आप समझाए, समझ में आ गया था। सब समझ में आ जाता है, हमको ही नहीं आता है। ओके, चलो, टुडे वी आर leaving the class, tomorrow again we will be start. Next week you can plan accordingly. My classes will not be there, maybe. Most probably chances I have a lot of work in the next week, so next week will not be, I think, will not be continue the class to in this week. I will be take the class tomorrow and day after tomorrow. ओके सर, ओके सर। Okay, थैंक यू सर। okay, bye bye, thank you. Thank you, sir.